الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم نور الہدایٰ کا امید کرتا ہوں کہ آپ نے پیچھے مفہوم اور سبق کو ترجمے کو اچھی طرح سے یاد بھی کیا ہوگا اور سمجھ بھی آ گئی ہوگی آپ کو۔ اب ہے کہ اگر پانی میں کھچر گر جائے، گدھا گر جائے یا چیر پھاڑ کرنے والا پرندہ وحشی جانور گر جائے، پرندہ گر جائے، جانور نہیں، پرندہ گر جائے تو عصا قول میں پانی فاسد نہیں ہوتا، پانی نجس نہیں ہوتا ہے۔ اگر پہنچ جائے گرنے والے کا لعاب، اگر گرنے والے کا لعاب تھوک پانی کو لگ جائے تو جو حکم تھوک کا ہوگا وہی حکم پانی کا ہوگا۔ یعنی کہ اگر کھچر گرے یا گدھا گرے تو پانی مشکوک ہو جائے گا، ناپاک نہیں ہوگا، مکروہ بھی نہیں ہوگا، مشکوک ہوگا، شک کیا جائے گا۔ اور اگر پرندہ گر جائے تو وہ ناپاک ہے تو پانی بھی ناپاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم نے پانی کے اندر ایک جانور پایا، اب جانور پھولا ہوا نہ ہو، مرا ہوا پایا تو اس کی مدت 1 دن اور 1 رات ہے۔ اگر 1 دن اور 1 رات کے جتنے نمازیں اور وضو کر کے اس سے وضو کیا تھا یا برتن دھوئے تھے یا وضو کیا تھا یا غسل کیا تھا اور نمازیں پڑھی تھی، وہ نمازیں دوبارہ لٹانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس میں جانور ملا اور جانور پھولا ہوا تھا، جانور کیا تھا؟ پھولا ہوا تھا، تو پھر 3 دن اور 3 راتوں کا اعتبار کیا جائے گا۔ یعنی کہ 3 راتیں اور 3 دن کی جتنی نمازیں پڑھی تھی اس پانی کے وضو کے ساتھ وہ دوبارہ لٹانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ مسئلہ ہے۔ اب ترجمہ کرتے ہیں۔ اور نہ ہی بغل، کھچر و حمار کے گرنے کے ساتھ، وقوع گرنے کے ساتھ، اور سبا طیر و وحش، اور چیر پھاڑ کرنے والے طیر پرندے و وحش، اور وحشی جان پرندے کے ساتھ، وحشی پرندے کے ساتھ، عصا قول میں، پھر صحیح عصا قول میں صحیح روایت یہ ہے کہ یہ گر جائیں تو پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ کب نہیں ہوتا؟ اگر لعاب ان کا نہ پہنچا، اور اگر وَإِن وَصَلَ لُعَابُ الْبَاقِ، اور اگر پہنچ جائے گرنے والے کا لعاب، تھوک اس میں مل جائے پانی کی طرف، ٹھیک ہے، واقع گرنے والے کی لعاب پہنچ جائے پانی کی طرف، آخذ لیا جائے گا اس کے حکم کو، تھوک کے حکم کو لیا جائے گا۔ تھوک جس طرح کا ہوگا اس طرح کا پانی ہو جائے گا۔ اگر تھوک نجس، پانی نجس، تھوک مشکوک، پانی مشکوک، تھوک حرام، پانی حرام، ٹھیک ہے۔ اور حیوان کا پایا جانا میت، مردہ، فیہا اس میں، پانی میں، ینجسھا تو وہ ناپاک ہوگا، من یوم 1 دن سے، ولیلۃ اور 1 رات سے وہ پانی ناپاک ہوگا، ومنتفخ اور پھول جائے تو من 3 ایام 3 دن سے، ولیلیھا اور 3 راتوں سے وہ پانی ناپاک ہوا ہوگا۔ ان لم یعلم وقت وقوعہ، اگر نہ معلوم ہو اس کے گرنے کا وقت، اگر اس کے گرنے کا وقت معلوم نہ ہو، اگر پھولا ہوا نہ ہو تو 1 دن اور 1 رات، اگر پھول جائے تو پھر 3 دن اور 3 راتیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ آگے ہم نے اس میں متمکن کی پہلی قسم پڑھ لی تھی، ضمیر کی 5 قسمیں وہ پڑھ لی تھی۔ آگے دوسری قسم کون سی ہے اس میں غیر متمکن کی؟ اسماء اشارہ۔ کون سی ہے؟ اسماء اشارہ۔ اسماء اشارہ، یہ اسماء اشارہ کیا؟ اسماء اشارہ، اسماء اشارہ کہتے ہیں جس کے ذریعے کسی کی طرف اشارہ کیا جائے، جس کے ذریعے کسی کی طرف اس اشارہ کیا جائے اسے اسماء اشارہ کہتے ہیں۔ یہ 13 ہیں، یہ کتنے؟ 13 ہیں، یہ 13 ہیں۔ ذا، ایک، ثانی، ذینی، تا، تی، ذی، ذہی، تہی، تانی، تینی، اولا، ای مد کے ساتھ، اولا کسر کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ دہراتا ہوں، ذا، ذانی، ذینی، تا، تی، تی، ذی، ذہی،
तिही, तानी, तैनी, उलाई मद के साथ, उलाई कसर के साथ, ठीक है। रा, रानी, रईनी, ता, ती, ती, री, रिही, तिही, तानी, तैनी, उलाई मद के साथ, उलाई कसर के साथ। दोबारा दोहराता हूँ, रा, रानी, रईनी, ता, ती, ती, री, रिही, तिही, तानी, तैनी, उलाई मद के साथ, उलाई कसर के साथ। बस आप इतना ही करें, ठीक है। आगे है कायदा नंबर 5। कायदा नंबर 5, फाइल को पहचानने का तरीका। कायदा नंबर 5 कौन सा है? फाइल को पहचानने का तरीका। कायदा नंबर 5 कौन सा है? फाइल को पहचानने का तरीका। फाइल की दो किस्में, फाइल की दो किस्में, इसमें ज़ाहिर और इसमें ज़मीर। इसमें ज़ाहिर जो फाइल लफ्ज़ों में मौजूद हो, इसमें ज़ाहिर जो फाइल लफ्ज़ों में मौजूद हो, इसमें ज़मीर जो फाइल लफ्ज़ों में मौजूद ना हो लेकिन उसका तर्जमा किया जाता हो। इसमें ज़मीर जो फाइल लफ्ज़ों में मौजूद ना हो लेकिन उसका तर्जमा किया जाता हो। इसमें ज़ाहिर जो फ़ाइल लफ्ज़ों में मौजूद हो, इसमें ज़मीर जो फ़ाइल लफ्ज़ों में मौजूद ना हो लेकिन उसका तर्जमा किया जाता हो, ठीक है। अब कायदा ये है कि फ़ेल के 14 सीगों को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। फ़ेल के 14 सीगों को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक हिस्सा सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब और दूसरा सीगा वाहिद मुअन्नस गायब एक तरफ और बाकी 12 सीगे एक तरफ। सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब, वाहिद मुअन्नस गायब एक तरफ, बाकी 12 सीगे एक तरफ, बाकी 12 सीगे एक तरफ। अब देखेंगे कि वो सीगा 12 सीगों में से है कि 2 सीगों में से है। देखेंगे कि वो सीगा 12 सीगों में से है, वो फेल 12 सीगों में से है कि 2 सीगों में से है। अगर है वो 12 सीगों में से, अगर है वो 12 सीगों में से तो उसका फ़ाइल हमेशा ज़मीर होगा, तो उसका फ़ाइल हमेशा ज़मीर होगा। अगर वो 12 सीगों में से है तो उसका फ़ाइल हमेशा ज़मीर होगा, ठीक है। और अगर वो सीगा 2 सीगों में से, अगर वो सीगा 2 सीगों में से तो देखेंगे कि सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब है या वाहिद मुअन्नस गायब है। देखेंगे सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब है या सीगा वाहिद मुअन्नस गायब है। अगर सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब है तो उसके 6 इसमें ज़ाहिर फ़ाइल बन सकते हैं। अगर सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब है तो उसके 6 इसमें ज़ाहिर में से कोई एक फ़ाइल बन सकता है। 6 इसमें ज़ाहिर में से कोई एक फ़ाइल बन सकता है। नंबर 1 वाहिद मुज़क्कर, नंबर 2 वाहिद मुज़क्कर का तस्निया, नंबर 3 तस्निया मुअन्नस गैर हकीकी, तस्निया मुअन्नस गैर हकीकी, नंबर 4 वाहिद मुअन्नस गैर हकीकी का तस्निया, वाहिद मुअन्नस गैर हकीकी का तस्निया, जमा तकसीर जमा मुज़क्कर सालिम, जमा तकसीर जमा मुज़क्कर सालिम। अगर इनमें से भी ना हो तो फिर फ़ाइल हुआ ज़मीर होगा। अगर इनमें से भी ना हो तो फ़ाइल हुआ ज़मीर होगा। और अगर वो सीगा वाहिद मुअन्नस गायब हो तो, अगर वो सीगा वाहिद मुअन्नस गायब हो तो उसके भी 6 इसमें ज़ाहिर में से कोई एक फ़ाइल बन सकता है। उसके भी 6 इसमें ज़ाहिर में से कोई एक फ़ाइल बन सकता है। पहला वाहिद मुअन्नस हकीकी, वाहिद मुअन्नस हकीकी, वाहिद मुअन्नस हकीकी का तस्निया, वाहिद मुअन्नस हकीकी का तस्निया, वाहिद मुअन्नस गैर हकीकी, वाहिद मुअन्नस गैर हकीकी, वाहिद मुअन्नस गैर हकीकी का तस्निया, वाहिद मुअन्नस गैर हकीकी का तस्निया, जमा तकसीर जमा मुअन्नस सालिम, जमा तकसीर जमा मुअन्नस सालिम। अगर इनमें से कोई एक भी फ़ाइल ना हो तो उसका फ़ाइल हिया ज़मीर होगा, तो उसका फ़ाइल हिया ज़मीर होगा, ठीक है। अब कायदा नंबर 5 है फ़ाइल को पहचानने का तरीका। फ़ाइल को पहचानने से पहले एक तमहीद का जानना ज़रूरी है। तमहीद ये है कि फ़ाइल की 2 किस्में, इसमें ज़ाहिर इसमें ज़मीर। इसमें ज़ाहिर जिसका फ़ाइल लफ्ज़ों में मौजूद हो, इसमें ज़मीर जिसका फ़ाइल लफ्ज़ों में मौजूद ना हो लेकिन उसका तर्जमा किया जाता हो। अब कायदा ये है कि फ़ेल के 14 सीगों को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। फिर सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब, सीगा वाहिद मुअन्नस गायब एक तरफ, बाकी 12 सीगे एक तरफ। तो अब देखेंगे कि वो सीगा
12 सीगों में से है कि 2 सीगों में से है। अगर वो सीगा 12 सीगों में से है तो उसका फ़ाइल हमेशा इसमें ज़मीर होगा, और अगर वो सीगा 2 सीगों में से है तो देखेंगे कि सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब है या वाहिद मुअन्नस गायब है। अगर वाहिद मुज़क्कर गायब है तो 6 इसमें ज़ाहिर में से कोई एक उसका फ़ाइल बन सकते हैं। 6 इसमें ज़ाहिर में से कोई एक उसका फ़ाइल बन सकते हैं। वाहिद मुज़क्कर का तस्नीया, वाहिद मुअन्नस गैर हकीकी, वाहिद मुअन्नस गैर हकीकी का तस्नीया, जमा तकसीर, जमा मुज़क्कर सालिम। अगर इनमें से कोई भी फ़ाइल ना बने तो उसका फ़ाइल हुआ ज़मीर होगा। और अगर सीगा वाहिद मुअन्नस गायब हो तो फिर भी इसका फ़ाइल 6 सीगों में से कोई एक बन सकता है। 6 इसमें ज़ाहिर में से कोई एक फ़ाइल बन सकता है। एक वाहिद मुअन्नस हकीकी, वाहिद मुअन्नस हकीकी का तस्नीया, वाहिद मुअन्नस गैर हकीकी, वाहिद मुअन्नस गैर हकीकी का तस्नीया, जमा तकसीर, जमा मुअन्नस सालिम। अगर इनमें से कोई भी फ़ाइल ना बने तो उसका फ़ाइल हिया ज़मीर होगा। ठीक है, आपने इसको अच्छी तरह से याद करना है और याद फिर रखना भी है इंशाअल्लाह ज़वजल आस्ता आस्ता, और साथ साथ पीछे से भी आपने ज़रूर याद करना है। रब ताला से दुआ है जो कुछ पढ़ा सुना अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। आमीन व मालिक।